Hello dear children, yesterday we learned about the resources, its utility and its value. Okay, so we learned the meaning of the resources yesterday, कि which are the valuable things, these all are the are resources. Now we are going further types of resources. What are the types of resources? Here are the two types of the resources. One is the natural resources and another one is the man-made resources. Among the natural resources, there are the two types. It means simply here are the two types of the natural resources. This is the renewable and non-renewable. So first here we are going to see about the natural resources. Resources are generally classified into the natural, human-made and human. Resources that are drawn from the nature and used without much modification are called the natural resources. The air we breathe, the water in your rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resources in the best possible way. So, what is mean natural resources? The resources which we get naturally that we call the natural resources. Suppose the lakes are natural resources, water we get from the sea, from the ocean, that is the natural resources, soil, minerals, this everything which we get easily, naturally, that we call the natural resources. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. Here you can see children that some natural resources can be renewable and some are not. It means some are non-renewable resources. Renewable resources are those which get the renewed or the replenished quickly. Some of these are ultimated and are not affected by the human activities such as the solar and wind energy. Means in renewable resources, some resources are not exhaustible, means वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं. 8. Careless use of the certain renewable resources like the water, soil and forest can be affected their stock. But water is also क्या है? Renewable. Water is also the natural resources. But इट इज़ नॉन रिन्यूएबल. अगर हमने वन टाइम अगर अच्छा वाटर जो है गुड वाटर वाटर फॉर फ्रेश ड्रिंकिंग दैट वाटर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो उसको हम फिर से रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स हमने जो भी सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, उसको केयरलेसली अगर यूज़ किया है तो उसका जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा. एंड दिस इज़ अफेक्ट टू आवर life. Water seems to be an ultimate renewable resources. Water seems to be an unlimited renewable resources, but shortage and drying up of a natural water resource is a major problem in many parts of the world today. Means here we can see student कि you know that 1/3 of the water available upon the earth. Means earth में जो है 75% water found होता है. But in that only 1.5% या तो 2% water is fresh. It means good, it means usable. यूजेबल वाटर ये 2% है उसमें से. तो ये जो यूजेबल वाटर है इसको हमने अगर एक बार यूज़ कर लिया तो हम इसको फिर से रिन्यू नहीं कर सकते. और जो वाटर ओशन सीज का होता है वो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसलिए वाटर को हमें क्या करना चाहिए, सेफली या केयरलेसली उसको केयरफुली हमें यूज़ करना है, केयरलेसली उसको यूज़ नहीं करना है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. अभी नाउ वी आर कम ऑन द पॉइंट ऑफ द नॉन रिन्यूएबल resources. The non-renewable resources, those which have a limited stock, once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to renewed or replenished.
since this period is much more than human lifespan, such as the resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. So in the non-renewable resources, the examples are non-renewable resources are coal, petroleum, natural gas. ये क्या होता है, एक बार हमने यूज़ किया तो इसको बनने में बहुत डिकेट्स लग जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक द टेरेन, क्लाइमेट एंड द अल्टीट्यूड. मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से फाउंड होते हैं. मीन्स एक जो नेचुरल रिसोर्सेज है, सपोज फॉरेस्ट का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं. फॉरेस्ट जो है तो लैंड पे एवरीवेयर फॉरेस्ट है क्या? नहीं है. लैंड पे अगर हम डेजर्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, एवरीवेयर डेजर्ट है क्या लैंड पे? नो. तो इट हैविंग अ स्पेसिफिक एरिया. सेम लाइक दैट इफ वी फाउंड अ कोल, तो कोल एरिया ऑल्सो स्पेसिफिक. एवरीवेयर वी आर अनेबल टू सी द कोल. सभी जगह पे कोल हमें फाउंड नहीं होगा. सपोज वी आर टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ द मेटल्स, तो मेटल्स भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मेटल्स फाउंड होते हैं, है ना. तो इन दिस वे अलग अलग जगह पे अलग अलग जो रिसोर्सेस है, अलग अलग टाइप से वो हमें फाउंड होते हैं. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. हमने देखा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग resources found होते हैं. Then human made resources. Sometimes natural substance become resource only when their origin from has been changed. Human made resources क्या होते हैं? जब नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ करके हम उसे कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करके कुछ नई चीज़ बनाते हैं, तो हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हो गए. जैसे कि आयरन ओरा वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it. आयरन ओरा जो था वो तब तक के रिसोर्स नहीं हुआ जब तक के पीपल ने न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करके उससे आयरन फॉर्म में नहीं लाया, उसको आयरन फॉर्म में नहीं लाया. पीपल यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीन्स एंड व्हीकल्स. यू नो आयरन ओरा से आयरन बनता है और उससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं. विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का ही पार्ट है. सपोज हम फॉरेस्ट में से वुड लेके उसे डेस्क बना रहे, बेंच बना रहे, तो ये क्या हो गए? मैन मेड रिसोर्सेज है. हमने पहले रिसोर्सेज मीन्स क्या देखा था कि जो हमारे नीड्स को फुलफिल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज. चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों नहीं रहे, बट दिस इज़ यूजेबल टू अस ना, सो दैट इट इज़ क्या है? ए रिसोर्सेज है. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग इज सेड राजू. चलो यहाँ तक हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं. सी फर्स्ट व्हाट वी सीन, व्हाट इज़ द रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज ये क्या होते हैं कि जिसकी हमें यूटिलिटी होती है वो सारी चीज़ें रिसोर्सेस में आती है, जो छोटी से छोटी भी रहती है. देन रिसोर्सेस कैसे होना चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए. वैल्यू मीन्स वर्थ, जिसका इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में. व्हाट इट. देन उसके बाद क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस में आता है न्यू टेक्नोलॉजी. मीन्स रिसोर्सेस को हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए तरीके से हम उसको बनाते हैं. गॉट इट. तो इससे क्या होता है? मैन मेड रिसोर्सेस हमारे फॉर्म होते हैं. फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज से अभी क्या हो गए? मैन मेड रिसोर्सेज फॉर्म हो गए, क्योंकि मैन ने क्या किया? अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैन मेड रिसोर्सेज बनाए.
फिर हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टुडे वी आर सीन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो हियर आर द टू टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. In the natural resources, there are the renewable resources and non-renewable resources. तो in the renewable resources we are seeing कि सनलाइट है, एयर है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती. That are the renewable resources. Non-renewable resources में जो चीज़ जो है वो एक बार, जैसे कि पेट्रोल है जिसका यूज़ कर लिया, पेट्रोल का हमने आज अपने गाड़ी में 1 लीटर फ्यूल डलवाया है, उसका हमने 1 टाइम यूज़ कर लिया है. ओके, तो ये आप फिर से इसको आप बना पाओगे क्या? 1 लीटर फ्यूल को आप फिर से ला पाओगे क्या? नो, इट इज़ एग्जॉस्टेड. तो ये क्या हो गया है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. देन ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. नाउ सपोज मैंने एक आपको फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया है कि फॉरेस्ट से हम अगर लकड़ियाँ लाते हैं या अगर वुड लाते हैं और वुड से हम कोई भी चीज़ें बनाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने बेंचेस बनाए हैं, डोर बनाए, वॉल बनाए, जो भी है वो बनाया है. तो ये हो गया अपना ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. इसमें कल हमने और एक वर्ड देखा था, पेटेंट. हमने देखा था पेटेंट की जो दादी माँ है उसकी है होम रेमेडी जो है वो क्या हो गई? उसने घर के लिए यूज़ की है, उसने उसको पब्लिश नहीं किए, बट शी वांट टू पब्लिश दैट रेमेडी. तो उसको क्या करना होगा? उस रेमेडी को प्रॉपर नेम देके अपना मैन्युफैक्चरिंग उसको लगाना होगा, और बाद में वो दादी माँ फार्मेसी में वगैरह वो रेमेडी क्या करेंगी? सोल्व करेंगी, और फार्मेसी से लोगों के घर तक पहुँचेंगी. ये क्या हो गया? पेटेंट. उसने अपने नाम से वो चीज़ सोल्व की है, दैट इज़ हर पेटेंट, हर अचीवमेंट. ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. ओके.